The next part, enthalpy of atomization. So it is the change in enthalpy when 1 mole of a compound in its standard state is broken into its gaseous atoms. If we are talking with respect to a compound, then 1 mole of that compound has to be taken and it will be broken into its gaseous atoms. So standard enthalpy of atomization deals with the enthalpy change occurring when we get gaseous atoms from a particular substance. If it is a solid substance, a single element, then also we can say that if that solid substance is converted to its gaseous atoms, then that will also be called enthalpy of atomization. So whether it is a compound or a single element, we are concerned here with the gaseous atoms produced. So it's called standard enthalpy of atomization. Now, if I want to give examples of standard enthalpy of atomization, write chemical equations representing standard enthalpies of atomization for. So let's say these are the 3 parts to the question. We want to represent the standard enthalpy of atomization for these. So first of all, 1 mole of the substance has to be taken. And from that 1 mole, we have to form its atoms. And those atoms that we write on the product side must be gaseous. So before that, I'll give one example, then you can start the question. If I have hydrogen gas, if I want to show the equation representing enthalpy of atomization of hydrogen gas, then I will write like this. 1 mole, so here I will write 1. And that particular substance must be broken down into its constituent atoms. Constituent atoms, that means H atoms. There will be 2 H atoms produced. And then I will again write gas. This is also representing enthalpy of atomization. Why enthalpy of atomization? Because I'm getting its gaseous atoms on the product side. Yeah, please write down.
Okay, try to solve this. So how will we solve this? We want to write the chemical equation representing enthalpy of atomization. So for the first one, it is sodium. So sodium is an element. Also, it is solid. So under standard conditions, sodium will be a solid. If I want to represent its atomization, I'll have to write sodium gas. So this is the equation for atomization of sodium. Next one, C2H6 ethane. For ethane, we can write this. So ethane is a gas. So I'll write ethane. I'll break it into its atoms. So 2C plus 6H. This will be the enthalpy of atomization, the equation representing enthalpy of atomization of ethane. Third one is carbon. Try this one now. Try the third one. Sir, C solid to C gas. Yes, correct. To be precise, I'll mention graphite because standard enthalpy has been asked for. So standard condition of carbon is graphite. So C graphite to C gas. So this represents enthalpy of atomization of each substance. And as I said, it has to be 1 mole on the reactant side. What about this one? If I ask you enthalpy of atomization for this glucose, this is glucose. Solid, 1 mole will keep here. And if I want to dissociate this into its atoms of gaseous state, then I'll write like this. This will be the equation representing enthalpy of atomization of glucose. This is O, not 60. It is 6O. This is going to be the equation representing enthalpy of atomization of glucose. Okay. Next one.
we have to write atoms only. So we cannot write H2 or O2 or H2O. Those things are not allowed. Only atoms need to be written because it is about atomization. So only and only atoms need to be written on the product side. And that too, the atoms have to be gaseous. So no H2, no O2, no H2O, nothing. If it is atomization, then only and only atoms on the product side. Okay, next one is standard enthalpy of neutralization. Now, neutralization is a reaction taking place between an acid and a base. There are different types of acids, there are different types of bases. An acid and a base reacts, and we get salt and water as products of that particular reaction. Whenever an acid reacts with a base, the reaction is called a neutralization reaction. The definition of standard enthalpy of neutralization is given, as you can see. So you can write down, and then I'll explain. So then 1 mole रहता ना? No. It is one equivalent. I'll explain. First, write down. I'll explain the meaning of equivalent. So it is the change in enthalpy when one equivalent of acid reacts with one equivalent of base. Under standard conditions to form 1 mole of water. Now, this is a definition. Definition इतना काम का नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए. ये नोट के अंदर जो पॉइंट्स है, they are very important. But before that, I'll explain to you the meaning of equivalent. Now see, 1 gram equivalent, इसको ऐसे लिखा जाता है GEQ. 1 GEQ is equal to 1000 MEQ. MEQ means milli-equivalents. You will often come across these terms in numericals. So if I write 1 GEQ, it means I'm talking about 1 gram equivalent, or we can just call it equivalent. So 1 GEQ is equal to 1000 MEQ. That is the first thing. The second thing is the relation between GEQ and moles. So the full form of GEQ is what? Gram equivalent. We don't write the full form, we always write GEQ. GEQ is gram equivalent. So 1 gram equivalent is equal to 1000 milli equivalents. Now, number of gram equivalents of any substance is equal to number of moles multiplied by n factor or called NF. ये आपका फॉर्मूला होता है किसी भी चीज का ग्राम इक्विवेलेंस निकालने का, ये फॉर्मूला होता है. Number of gram equivalents is equal to number of moles into n factor Now, what is number of moles? You all know moles is equal to grams upon molar mass. So that is okay. Now, what is this NF?
NF is n factor. NF is n factor. इसको ऐसे लिखा जाता है NF और n factor. What is this? You have to understand that. Now, n factor for acids we'll understand first, and then we'll do n factor of base. N factor of acid. What is n factor of acid? If I talk about an acid, HCl, n factor of this acid is 1 because HCl can give 1 H plus. So I can say that n factor is a measure of the H plus ions that can come out in aqueous solution from the acid. So n factor of HCl is 1. If I ask you n factor of H2SO4, then I will say H2SO4 dissociates in this manner. And so n factor of H2SO4 is 2. So the number of H plus ions that can come out from one molecule of the acid is called its n factor. Okay. What about n factor of methanoic acid? HCOOH. N factor of this will be again 1 because it can come out and give you these two ions. So H plus and HCOO minus. Okay. So जितने H plus ions आ रहे हैं उस पर डिपेंडेंट रहेगा n factor. H plus plus HCOO minus. तो इसके लिए इसका भी क्या रहेगा n factor 1. अब एक शॉर्टकट मैं बता रहा हूं, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ऑर्गेनिक का एसिड वी हैव स्टडीड इन नोमेनक्लेचर ऑलरेडी, उसमें COOH रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड. COOH जितने COOH रहेंगे उतने H प्लस आयंस बाहर निकल सकते हैं. यानी जितने HCOOH रहेंगे उतना n फैक्टर का एग्जैक्ट वैल्यू वही आएगा. Okay. So now if I ask you about the n factor of this acid, CH3, CH2, COOH, what will be the value? One. 1. क्योंकि एक H प्लस आएगा और बाकी रहेगा CH3, CH2, COO माइनस. राइट. तो ये n फैक्टर का कंसेप्ट है. सर एन फैक्टर बस H प्लस के लिए होता है? नहीं, हर किसी के लिए डिफाइंड होगा. हम लोग फिलहाल सिर्फ एसिड और बेस के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. व्हेन वी डू रिडॉक्स रिएक्शंस तभी अलग से फिर से n फैक्टर की बात करेंगे, बट वो रिडॉक्स रिएक्शंस के चैप्टर में. ओके, नाउ एसिड एंड बेस के लिए आप समझ लो n फैक्टर. अब देखो, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट दिस एसिड, this is called succinic acid. Common name is succinic acid. What should be the value of n factor for this? 2. Yes, so this is going to be the dissociation if I want to show. So 2. Right. Next, what is the value of n factor for oxalic acid? Oxalic acid is what? This is oxalic acid.
So I can write like this. तो जितना COOH उतना एग्जैक्ट वैल्यू आएगा n फैक्टर का. So this much is clear. Okay. तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए. Coming to base. बेस जैसे एसिड्स के लिए H प्लस देख रहे थे तो बेस के लिए हम लोग OH माइनस देखेंगे. What should be the n factor of NaOH? 1. So this is going to be the dissociation. So 1 because AQOH minus ion. What is the n factor of barium hydroxide? This is going to be the dissociation. That means 2 is the n factor of barium hydroxide. Okay. So this is how you have to calculate n factor for acid and n factor for base. So I have taught you only about acids and bases. बाकी अभी छोड़ दो. Okay. Now coming to the next part of this, that is n factor तो हो गया. This weak acids and strong acids. Now see, if you don't know about strong and weak acids, that's okay. We will learn about them later. As of now, you have to just know that if I want to classify acids on the basis of their strength, then one simple thing I have to remember is all the carboxylic acids, that is the acids containing this, are weak acids. COOH देखते ही क्या बोलना है? It's a weak acid. तो ये पहली चीज है. कार्बोक्सिलिक एसिड देखते ही आपको बोलना है it's a weak acid. Similarly, uric acid weak जो होता है, you must have learnt it in periodic classification. That is HF. HF is also a weak acid. Okay. तो weak acids में आपको ये पता होना चाहिए. HF and all carboxylic acids. These all are weak acids. Next, weak base. Weak base में आपको इसका नाम पता होना चाहिए. फिलहाल ये काफी है, इससे ज्यादा you don't need. NH4OH is a weak base. NH4OH is a weak base. HF is a weak acid. Remember this. And NH4OH is a weak base. So ये आपको basic knowledge पता होना चाहिए जो मैंने अभी बताया. Now you can go ahead. Now let's go ahead with the concept. Okay, before that, please note down these formulae. Okay. And yes, ये भी note down करो. 1 GeQ is equal to 1000 MEQ. ये सब अभी note down करो and then we'll go ahead. Done?
Note down this formula first. This is the definition of standard enthalpy of neutralization. Write down. Okay. So for a reaction between a strong acid and a strong base, delta H neutralization is equal to minus 57.3 kilojoule per mole of water formed. Means what? If 1 mole of water is formed, then 57.3 kilojoules of energy will be released. Or I can say 13.7 kilocalories of heat will be released, because the minus sign is there, indicates that energy is going to be released. So a neutralization process is an exothermic reaction. Why? Because heat is released. So exothermic reaction hota hai ye. And how much energy is released? You have to know that. Minus 57.3 kilojoule ka matlab hai 57.3 kilojoules of heat will be released. When? Per mole of water formed. Per mole of water formed का मतलब क्या है? 1 mole of water formed है, उसके लिए 57.3 kilojoules will be released. या फिर आप बोल सकते हैं 13.7 kilocalories will be released. But you have to specify that it is for 1 mole of water formed. It is for 1 mole of water formed. Okay. So either you define it in this manner, that is per mole of water formed, or we can say that delta H neutralization is minus 57.3 kilojoule or minus 13.7 kilocalorie if 1 gram equivalent of a strong acid reacts with 1 gram equivalent of a strong base. This is also another way of saying the same thing. So either you say that delta H value is minus 57.3 kilojoules for 1 mole of water formed, or you can say that delta H neutralization is minus 57.3 kilojoules if 1 gram equivalent of a strong acid reacts with 1 gram equivalent of a strong base. So could you scroll up a bit? Yes, ये बहुत important है, तो ये लिख लो.
दोनों डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन के मतलब बारे में बट अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ। हाँ, एक पर मोल ऑफ वाटर फॉर्म्ड के हिसाब से डिफाइन किया जा रहा है, वाटर कितना बन रहा है, या फिर दूसरा डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। सो पर मोल ऑफ वाटर फॉर्म्ड के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, या फिर delta H neutralization is equal to minus 57.3 kilojoules if 1 gram equivalent of a strong acid reacts with 1 gram equivalent of a strong base. Okay. So GEQ is what? Gram equivalent. Second point is also very important for GE. Write down the second point as well, and then we'll do one sum. लेस देन मतलब मॉड में लेस देन होगा। Yes. इसके लिए बोला है द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? 57.3 एनर्जी रिलीज हो रहा है। So if I have one weak acid and a strong base, or if I have one weak base and a strong acid, or if I have a reaction wherein both the acid and the base are weak, then the heat released, जितना रिलीज होगा वो 57.3 किलोजूल से कम होगा। यानी अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो ही वो एग्जैक्ट 57.3 किलोजूल रिलीज होता है एक मोल ऑफ वाटर के लिए। अगर कोई भी एक वीक होता है या दोनों ही वीक कंपोनेंट्स होते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो 57.3 किलोजूल से कम होती है, यानी कम एनर्जी रिलीज होती है। बाय उसका रीजन ये है दैट some amount of energy is absorbed or utilized in dissociating the weak acid or the weak base। यानी जो वीक होता है उसको डिसोसिएट करने के लिए थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है, थोड़ी एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। तो इसके लिए ओवरऑल जो नेट इफेक्ट हुआ, जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए वो 57.3 से थोड़ा कम रिलीज होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा अमाउंट गया है, यूटिलाइज हो चुका है वीक एसिड को या वीक बेस को डिसोसिएट करने में। सर नेगेटिव साइन भी होगा ना? डेल्टा एच लिखोगे तो नेगेटिव साइन होगा, बट आई एम सेइंग वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज्ड।
value of energy released होगा मतलब when I am specifying the Value. word released, that means I have to take the modulus Yes. value. Okay. The definition or the value given here is with respect to water form, that is per mole of water form. ये आपको ध्यान में रखना है. वाटर कितना फॉर्म हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं. This happens because, as I said, some energy is utilized in ionizing the weak component. तो उसमें ऊपर स्टोर कर सकते हैं. सर आप ये पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कीजिए. हाँ, so when we have a reaction where the acid is weak, or if the base is weak, or if both acid as well as base are weak, तो जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, वैसे 1 मोल ऑफ वाटर बनने के लिए 57.3 किलोजूल should be released, but that is when both acid and base are strong. अगर एक भी एसिड या बेस में से कोई वीक हो गया या दोनों ही वीक बन गए, तो 57.3 किलोजूल ऑफ एनर्जी पर मोल ऑफ वाटर. सर ये डेल्टा एच है ना? हाँ, डेल्टा एच आप डालोगे तो आप माइनस डालोगे बिकॉज रिलीज्ड है ना. तो व्हेन आई राइट डेल्टा एच विल बी डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस लेट्स से 50 माइनस 50 किलोजूल, ऐसा लिखना पड़ेगा सर अगर मानो कोई भी वीक कंपोनेंट. ओके सर, समझ गया सर. रिलीज वर्ड यूज किया है मतलब डेल्टा एच तो नेगेटिव आएगा, बट जो वैल्यू कितना है वो वैल्यू मॉड्यूलस लोगे आप तो वो कम हो रहा है ना. मॉड्यूलस कम हो रहा है सर बेसिकली. सो कितना रिलीज हो रहा है आपको अगर पूछेगा कि रिलीज के कम है कि ज्यादा है तो आप बोलोगे रिलीज कम है, कम रिलीज हो रही है एनर्जी. क्यों Yes, ऐसा sir, होता है? Because some amount of energy will be utilized in dissociating or ionizing the weak reactant. क्योंकि जो weak reactant होता है वो पूरी तरह से आयनाइज अपने आप नहीं होता है, उसको एनर्जी अब्सॉर्ब करके आयनाइज करना पड़ता है. इसके लिए तो वो वीक है ना. मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं कि मेरा एसिड है HF which is a weak acid, तो it will not undergo complete ionization. वो ऐसे टाइप का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है. कहने का मतलब क्या हुआ, if 1 mole of HF is taken, it will not dissociate into 1 mole of H plus and 1 mole of F minus. No. Only let's say 0.7 moles will dissociate and 0.3 moles of HF will be left behind. That is why we are calling it a weak acid. तो अगर मुझे पूरा 1 मोल को डिसोसिएट करना है तो कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, तो कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब होगी तो ही होगा, वरना नहीं. So in order to drive this process forward, ऐसा अगर करना है पूरा, थोड़ा एनर्जी अब्सॉर्ब होता है. और अगर एनर्जी देनी पड़ रही है इसका मतलब ओवरऑल जो एनर्जी रिलीज होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वो 57.3 से तो कम हो जाएगी, बिकॉज थोड़ा तो इसको आयनाइज करने में यूटिलाइज हो जाएगा ना. दैट इज हाउ इट इज. इसको आयनाइज करने के लिए थोड़ा यूटिलाइज हो जाएगा. तो वही लिखा है यहाँ पे. अगर आपको किसी ने पूछा तो उसका रीजन ये है, because some energy is utilized in ionizing the weak reactant. Now the formula for calculating delta H neutralization. This is a formula. अगर आपको किलो कैलोरी में निकालना है तो ही ये फॉर्मूला आप यूज करोगे. अगर किलो जूल में निकालना है तो क्या करना है बोलूं, फॉर्मूला को देख के बताओ क्या करना चाहिए. If I want to find out the value in kilojoules, 2 से मल्टीप्लाई. now see there are two ways of doing this.
या तो आप पूरा किलो कैलोरी में निकालो, पहले आप पूरा किलो कैलोरी में निकालो और फिर उसको किलो जूल में कन्वर्ट करो। 1 किलो कैलोरी will be equal to 1.98 4.18 किलो जूल्स, राइट? तो अगर आपको पूरा किलो कैलोरी में निकालना है तो आप किलो कैलोरी में निकालो और फिर इसको 4.18 से मल्टीप्लाई कर दो। That is one possibility. What is the other possibility? The other possibility, direct 57 minus 57. that is यहाँ पे 13.7 जहाँ पे मैंने लिखा है, इसके बदले में आप कर दोगे इसको 57.3 और ये डेल्टा एच डिसोसिएशन जो दिख रहा है किलो कैलोरी पर मोल, ये किलो जूल पर मोल क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो उसको किलो जूल पर मोल में ले लोगे आप इंस्टेड ऑफ किलो कैलोरी पर मोल। इसको क्या किस में लोगे? किलो जूल पर मोल। तो क्वेश्चन में अगर किलो जूल पर मोल में दिया है डेल्टा एच डिसोसिएशन, तो मतलब आपको किलो जूल में सब करना। अगर डेल्टा एच डिसोसिएशन किलो कैलोरी पर मोल में दिया है तो आपको ओवरऑल कैलकुलेशंस किलो कैलोरी में करना है। दैट्स ऑल, इट इज योर जजमेंट। All right. So 1 calorie और this conversion factor क्या होता है? 4 point। तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर डायरेक्ट -30.7 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, करेक्ट। तो फिर ये डेल्टा एच डिसोसिएशन का पार्ट नहीं आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा स्ट्रॉन्ग है तो। ये कब आएगा? सिर्फ जब देखो वीक लिखा है, अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा। So that is why the fourth point is written. Delta H dissociation is 0 for strong acids and strong bases because they dissociate completely into their respective ions. We don't need to supply any energy. तो जो डेल्टा एच का वैल्यू है डिसोसिएशन वो 0 आता है क्योंकि वो पूरी तरह से डिसोसिएट अपने आप हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो। Now come to the sum. ये आपको अगर पता है थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड और फोर्थ वाले पॉइंट्स अगर आपको पता है तो आप सम कोई भी सॉल्व कर सकते हो बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन। पहले थर्ड फॉर्मूला आप लिख लो अच्छे से। GQ कैसे निकालना है? ऑलरेडी आई हैव टॉट। GQ is equal to moles into NF. We can also represent a neutralization reaction in this manner. In the MCQs they ask you which of the following is a neutralization reaction. तो ये भी आपका एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है जो आपको सामने दिख रहा है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कितना लिखा है बाजू में मैंने एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंजेस -13.7 किलो कैलोरी, आल्सो इट इज इक्वल टू -57.3 किलो। नाउ तो थोड़ा सा ऊपर से ये देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है, इस रिएक्शन में 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है। इसके लिए सीधा ये वैल्यू आ गया, मतलब इनटू 1 करके ही मैंने ये 13.7 लाया है, तो इनटू 1 हो जाएगा बिकॉज एक ही मोल ऑफ वाटर बन रहा है। सो फिफ्थ पॉइंट में OH और H दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस भी तो हो सकते हैं। कौन सा? सो फिफ्थ पॉइंट में जो आपने लिखा है, आपने डायरेक्टली वैल्यू जो लिखी है
तो उसमें 1 मोल ऑफ वाटर है, बट हमें कैसे पता था बोथ ऑफ देम आर नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस? नहीं, मैंने रिप्रेजेंट किया कि अगर 1 मोल ऑफ H प्लस प्रेजेंट है, मैंने एसिड और बेस को रिप्रेजेंट नहीं किया यहाँ पे, मैंने बस लिखा है कि अगर 1 मोल ऑफ H प्लस है और 1 मोल ऑफ OH माइनस है तो क्या होगा। नहीं, मतलब आपने ऊपर लिखा था ना कि डेल्टा H डिसोसिएशन 0 हो जाएगा, हाँ, तो फिर अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग के लिए डेल्टा डिसोसिएशन 0 होता है, करेक्ट, यस। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लो आप, जैसे मानो NaOH ले लो आप, तो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसको आप डिसोसिएट करोगे तो ऐसा आएगा। इस प्रोसेस में if I ask you what is the amount of energy which is released, what will you say? 0. What is the amount of energy which is absorbed? 0. इसका मतलब है फोर्थ पॉइंट। ओके, यानी ये प्रोसेस होने के लिए कोई एनर्जी चेंज नहीं होती है NaOH का डिसोसिएशन करने के लिए। Neither is energy absorbed nor is energy released. Similarly, if I want to write HNO3, इसका भी वही होगा। Neither is energy absorbed nor is energy released. तो अगर मैं बोलूं what is the enthalpy change for this process, तो आप क्या बोलोगे? 0. Why? Because this is the dissociation of a strong acid. So delta H dissociation of HNO3 is 0. Okay. क्लियर हो गया डाउट? सो मेरा फिफ्थ पॉइंट में बोल रही थी कि वहाँ पे 0 हो सकता है ना, फिर अगर H प्लस और OH नेगेटिव, हम श्योरली नहीं, कैसे ये बोल सकते हैं? दिस इज नॉट डिसोसिएशन, दिस इज कॉम्बिनेशन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। मैं तो एसिड Yes, और बेस की yes, बात कर रहा था yes. डिसोसिएशन में। Okay, yes, sir. This is just a combination of two ions. Because one is H plus and one is OH minus, I am calling it a neutralization reaction. तो वही बोल रहा हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को लिखने का तरीका ये भी है। This is also another way to represent neutralization reaction. H plus plus OH minus giving water, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। भले ही आपको एसिड और बेस ना दिखे यहाँ पे, बट आपको H प्लस और OH माइनस तो दिख रहा है ना। तो इस रिएक्शन के लिए अगर किसी ने पूछा डेल्टा H क्या है, तो आपको बोलना है -13.7 किलो कैलोरी है। बट अगर मैंने बोला व्हाट इज द डेल्टा H वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन, अब क्या बोलोगे? लास्ट टाइम मैं टॉट यू अलजेब्राइक इक्वेशंस की तरह होती है ये सब चीजें। तो कोई भी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा H का वैल्यू भी उसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा इसका? व्हाट विल बी डेल्टा H फॉर दिस? 2H plus plus 2H minus giving 2H2O. -27.4. -27.4 किलो कैलोरीज, करेक्ट। तो ऐसे पूछ सकते हैं। सो कोई भी इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं नंबर से, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा H भी मल्टीप्लाई हो जाता है उसी नंबर से। Solve this question. I'll show you the solution after 3 minutes. Take 3 minutes and try to solve this. किलो कैलोरी पर मोल में है तो किलो कैलोरीज में ही आप डील करो पूरे क्वेश्चन को। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? We know because we have done nomenclature. This is called oxalic acid. This is called oxalic acid. इसको कभी-कभी बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है H2C2O4 oxalic acid.
क्या होगा इसका? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे कोई भी क्वेश्चन हो या न्यूट्रलाइजेशन के रिलेटेड जो भी डेटा दिया है, straight away we'll go back to the third form, this formula. Yes, one person has given the correct answer, Satyam. All right. What is the answer? Anybody else? नहीं, wrong. बाकी जितने भी लोगों ने दिया wrong. सिर्फ सत्यम का ही करेक्ट है. It's a straightforward application of that formula, right? आप formula लिखो पहले, लिख लिया होगा formula अब तक तो. And in this formula, you need the number of gram equivalents of acid और base. तो या तो आप एसिड के टर्म्स में काम करो या फिर आप बेस के टर्म्स में काम करो. देखो इसमें मैंने लिखा है एसिड और बेस. मतलब क्या? या तो आप एसिड लेके काम करो या फिर आप बेस लेके काम करो. तो एसिड लेके हम लोग काम करेंगे बिकॉज क्वेश्चन में एसिड के बारे में बोला गया है. ओके so let's start in this manner. Let us assume that there are x moles of oxalic acid that have been neutralized by a strong base. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और उस प्रोसेस में -25.4 किलो कैलोरी पर मोल हो रहा है डेल्टा एच का वैल्यू. If x moles of oxalic acid have reacted, so I can say gram equivalents of oxalic acid will be 2x. Why? Because gram equivalents is moles into n factor. n factor 2 होता है oxalic acid का क्योंकि 2 COOH है उसमें. तो yes, now many of you have given the correct answer. Correct. Abhijit Smith. Okay, so if x moles of oxalic acid have reacted, that means 2x moles of 2x gram equivalents of oxalic acid have reacted. Delta H neutralization is given as -25.4 kilocalorie per mole. तो per mole of acid है मतलब कुछ नहीं बोला है, oxalic acid बोल रहा है ना, तो per mole of oxalic acid. If I multiply this value by the number of moles of oxalic acid, I will get the total delta H for the entire reaction. So -25.4 multiplied by x will be -25.4x. ये हो जाएगा.
So delta H न्यूट्रलाइजेशन का फॉर्मूला लगाएंगे अभी, दैट थर्ड वाला इक्वेशन लगाएंगे, ये वाला delta H न्यूट्रलाइजेशन इज हाउ मच -25.4x, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, -25.4x is equal to -13.7 into 2x. ये 2x क्या है? 2x is GEQ of oxalic acid reacted. X moles of oxalic acid अगर है तो 2x ग्राम इक्विवेलेंट of oxalic acid है ना. GEQ is moles into n factor. तो फॉर्मूले में प्लग इन करोगे वैल्यूज तो ये मिल जाएगा. अब x कैंसिल आउट हो जाएगा थ्रू आउट. And then final answer will be this. तरफ ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं और ऊपर. यही मेन पार्ट है जो अभी तुमको दिख रहा है स्क्रीन पे. दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ द एंटायर सम. On substituting the values in this, delta H neutralization कितना है? -25.4x. तो वो डाल दिया. फिर ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H2C2O4 कितना है? 2x. वो डाल दिया. मोल्स ऑफ H2C2O4 कितना है? x. यहाँ पे डाल दिया, वो सब दिया वाला आ जाएगा. So this is a substitution of the values. सर हम लोग डायरेक्टली 1 मोल अज्यूम करके भी कर हाँ सकते हैं. कर सकते, कुछ भी अज्यूम करो. मैंने x अज्यूम किया, तुम 1 अज्यूम करो. कोई बोलेगा मुझे 5000 अज्यूम करने हैं तो 5000 भी अज्यूम करोगे, कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली आप देख सकते हो ये x X कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल आउट हो जा रहा है. मतलब कोई भी वैल्यू लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Basis is your choice. You can take anything as your basis. Any positive value can be taken as basis. हो गया, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा. Always तो remember, x मल्टीप्लाई होगा हमारे इसमें भी, मतलब डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन. हाँ क्योंकि वो पर मोल के हिसाब से दिया है ना डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन. देखो यहाँ पे दिया है पर मोल, इसके लिए x से मल्टीप्लाई किया. पर मोल बोला है ना. That's why you have multiplied this x. Because x moles of oxalic acid have reacted. तो -25.4 तो सिर्फ 1 मोल के लिए ना, पर मोल है वो. तो x मोल्स के लिए कितना रहेगा? -25.4 into x. This will be the final answer. ऐसा कोई भी सम न्यूट्रलाइजेशन पे कर सकते हो. You should just know the formula. और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो क्या होगा? ये वाला पूरा टर्म हट जाएगा, इसको नहीं लिखना है. फिर अगर दोनों ही एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये वाला टर्म आप नहीं लिखोगे, तो प्लस के बाद जो है ना ये नहीं रहेगा. दिस टर्म इज नॉट गोइंग टू बी देयर. तो वो जीरो हो जाएगा. जो भी मैंने अभी लिखा है प्लस के बाद वहां पे आपको जीरो लिखना पड़ेगा, यानी दिस एंटायर थिंग विल वैनिश. कभी जब दोनों ही एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग हो तभी. Okay, next question.
नाउ सी डेल्टा एच एक रिएक्शन के लिए पूछा जा रहा है, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर्स दिए गए हैं. 2 different values of temperature have been given. Whenever you have 2 different temperatures and delta H is being talked about, you have to use Kirchhoff's equation. That Kirchhoff's equation was taught in the previous lecture. वापस मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो, this is called Kirchhoff's equation. This thing is called Kirchhoff's equation. Delta H2 minus delta H1 upon T2 minus T1 is equal to delta Cp. ये कब यूज करना है? जब अलग अलग टेम्परेचर्स दिख रहे हो क्वेश्चन के अंदर और डेल्टा एच के बारे में पूछा हो. So these all are given data. So what is the reaction? Half N2 plus O2 giving NO2. This is the reaction. इस रिएक्शन के लिए एक टेम्परेचर है 300 केल्विन और एक टेम्परेचर है 400 केल्विन. 300 केल्विन पे the value of delta H for the reaction is minus 35 किलोजूल. तो उसको डेल्टा H1 मान लूंगा मैं. ओके, डेल्टा H1 कौन सा होगा? The value of delta H at T1. T1 को मैंने 300 केल्विन माना, T2 को मैंने 400 केल्विन माना. तो अगर T1 is 300 केल्विन, that means delta H1 is the value of enthalpy change at 300 Kelvin. If T2 is 400 Kelvin, that means delta H2 is the value of enthalpy change taking place at 400 Kelvin. So delta H2 minus delta H1 upon T2 minus T1 is equal to delta Cp. Now what is delta Cp? वो मैंने दिखाया है यहाँ पे. जब कोई रिएक्शन है आपके पास तो उसके हिसाब से डेल्टा Cp लिखना पड़ता है. What is delta Cp? Delta Cp is, you will first look at the products. NO2 is the product in this reaction. Look at the coefficient of NO2. What is the coefficient of NO2? Here you have 1. Coefficient of NO2 is 1. तो उससे मल्टीप्लाई किया है इसके लिए Cp को, right? Similarly, minus मतलब प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स ऐसा होता है. तो प्रोडक्ट्स में NO2 है, रिएक्टेंट्स में दो रिएक्टेंट्स है. तो अगर दो रिएक्टेंट्स है तो दोनों के ही आपको लेने पड़ेंगे. इसके लिए ब्रैकेट डाला है यहाँ पे मैंने. एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय द कोएफिशिएंट. सो हाफ इज द कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन. सो हाफ विल बी मल्टीप्लाइड विद Cp of N2 and 1 will be multiplied with Cp of O2 because O2 का कोएफिशिएंट इज 1. हर एक का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, इसके लिए मैंने दिखाया है. Delta Cp. So you will first look at the products and then you will subtract the values of Cp of the reactants from the value of Cp of product. Cp values are given. तो हर एक को मैंने लिया है, मल्टीप्लाई किया है कोएफिशिएंट से. इसके लिए देखो कोएफिशिएंट्स दिखाए गए हैं. सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा. अल्टीमेटली डेल्टा Cp का वैल्यू कुछ आएगा, इट इज -10. सो डेल्टा Cp निकाला हम लोगों ने. सो व्हाट इज डेल्टा Cp? पहले प्रोडक्ट्स को देखना होता है, फिर रिएक्टेंट्स को. वो सब किया, सब्ट्रैक्ट किया रिएक्टेंट्स के वैल्यूज को जो ब्रैकेट्स में दिख रहे हैं. -10 is the answer for delta Cp. Now you can put the value of delta Cp in Kirchhoff's equation. You know T1, you know T2, delta H1 आपको क्वेश्चन में देके रखा है माइनस कितना 35 किलोजूल. तो आपका डेल्टा H2 निकल जाएगा. इसको सॉल्व करोगे. मैंने सब कुछ जूल में लिया है, इसके लिए 35,000 कर दिया मैंने. क्यों ऐसा? बिकॉज Cp भी तो जूल में ही है ना. डेल्टा Cp जो है वो भी जूल में ही है, क्योंकि Cp के वैल्यूज भी क्वेश्चन में जूल में देके रखे हैं. सब कुछ मैंने जूल में लिया है इसके लिए. And we will get the answer in joules. सर लेकिन Cp वैल्यूज तो फिक्स्ड होते हैं ना नहीं, एक्चुअली दे आर नॉट फिक्स्ड. हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो लोग फिक्स होते हैं. बहुत नेग्लिजिबल चेंज होता है.
और टेम्परेचर 100 केल्विन से चेंज हो रहा है, इसके लिए Cp डेल्टा Cp विल बी सिग्निफिकेंट. Okay, sir. But if nothing is mentioned in the question, we will assume that Cp values are fixed. Correct. But यहाँ पे क्यों ऐसे नहीं करना है? Because यहाँ पे दो अलग अलग टेम्परेचर्स ऑलरेडी दे के रखे हैं. क्वेश्चन में बोला है 400 केल्विन 300 केल्विन, इसके लिए. सब कुछ जूल में आएगा. फाइनली मैंने इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया. कोई भी अगर जूल में आपका वैल्यू मोर देन 4 डिजिट्स आ रहा है तो आपको किलो जूल में फाइनली इसको कन्वर्ट करना है. इट्स अ 5 डिजिट नंबर, राइट? 36,000. सो 5 डिजिट नंबर है या 6 डिजिट नंबर है तो उसको आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना है. इनफैक्ट 4 डिजिट नंबर है तो भी किलो जूल में कन्वर्ट करना है. सिर्फ जब 3 डिजिट नंबर है तो उसको किलो जूल में कन्वर्ट यूजुअली हम लोग नहीं करते हैं. बट 4 डिजिट हो या 4 डिजिट से ज्यादा हो, we have to convert it into kilojoules finally. But while working we will use joules. Like here I have done joules. While solving the question you will have to use joules, but final answer को रिपोर्ट करते वक्त kilojoules में कन्वर्ट करना है. Okay, next part. इसको पहले समझ लो, बाद में you can write down. बॉन्ड एंथैल्पी का शॉर्ट फॉर्म होता है BE. तो आपको एग्जाम में कभी-कभी दिखता है BE. Don't get confused. BE means bond enthalpy. What is bond enthalpy? बॉन्ड एंथैल्पी का डेफिनेशन तो छोड़ो, वो तो है दिया हुआ. एग्जाम पे समझते हैं. अगर मैं मीथेन का बोलूं, मीथेन में क्या हो रहा है? This is the structure of methane. You have 4 CH bonds in methane. तो अगर मैं बोलूं what is the bond enthalpy of CH bond? If I ask you what is the bond enthalpy of CH bond, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा बॉन्ड. तो CH बॉन्ड. सर जितना एंथैल्पी चेंज होगा अगर बॉन्ड टूटेगा तब. हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल के अंदर ये वाला तोड़ता हूं, ये वाला बॉन्ड, तो CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए I have to supply some energy that is called bond dissociation energy. एक बार मैंने अगर इस बॉन्ड को तोड़ दिया तो उसको जितनी एनर्जी दी मैंने इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, नॉट बॉन्ड एनर्जी. आई रिपीट, I will call it bond dissociation energy, that is BDE, not bond energy. Bond dissociation energy. Why? Because at a time I am breaking only one bond. So bond dissociation energy क्या होगा? जब मैं एक बॉन्ड को तोड़ रहा हूं मॉलिक्यूल में. Now, once I break this, I'll be left with this species. This species. Why? Because this has gone out. This has gone out. So I'll be left with this species. Now, again, if I break this bond, so again that will be the second bond dissociation energy of CH bond. मतलब क्या हो रहा है? जो आप एनर्जी मैंने पहले सप्लाई की थी CH बॉन्ड को तोड़ने में, वो कुछ और वैल्यू थी, अलग वैल्यू थी. अभी मैं जो वैल्यू सप्लाई करूंगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो थोड़ा सा अलग होगा. कहने का मतलब ये है, भले ही वो बॉन्ड CH हो, बट बिकॉज वो अलग अलग एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन का वैल्यू अलग रहेगा. तो ऐसा मत समझो कि वो CH बॉन्ड है तो मैं CH बॉन्ड को तोड़ रहा हूं तो कहीं भी मैं CH बॉन्ड को तोड़ूं तो एक ही अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. नो, इट इज नॉट दैट. इट विल डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट एज वेल. जैसे यहाँ पे अभी ये भी है, ये भी है, तो इन दोनों के रिपल्शंस और इन्फ्लुएंस की वजह से मुझे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए सप्लाई करनी पड़ेगी.
सर तो वो पहला बीडी और दूसरा बीडी तो सेम? पहला बीडी और दूसरा बीडी आर डिफरेंट वैल्यूज, दे आर नॉट द सेम। ओके, एक बार मैंने इसको तोड़ दिया तो अभी ऐसा हो जाएगा, अभी कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वापस मैं बोलूंगा इस वाले CH को तोड़ो, दिस विल बी द थर्ड BDE, व्हिच मींस अलग अलग BDE के वैल्यूज आएंगे। तोड़ दिया इसको तो अब ये बचेगा, सर वो अलग अलग क्यों है वैल्यूज? क्योंकि अलग अलग रिपल्शंस है ना। पहले जब तुमने तोड़ा था तब 3 हाइड्रोजन एटम्स थे आजू बाजू, सेकंड टाइम व्हेन यू आर ब्रेकिंग अभी 2 हाइड्रोजन एटम्स थे, नाउ यू आर ब्रेकिंग थर्ड टाइम तो 1 हाइड्रोजन एटम है, ऐसा ना। सर BD की वैल्यू डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? दैट विल डिपेंड, इट मे डिक्रीज यूजुअली बिकॉज़ रिपल्शंस कम हो रहे हैं तो थोड़ा डिक्रीज होता है। सर अगर रिपल्शन कम होता है तो फिर आराम से निकलना है। हाँ वही ना, तो कम होना चाहिए ना फिर। सर लेकिन ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव नहीं है, अगर रिपल्शन कम हो रहे तो फिर रिपल्शन निकाल ही तो रहे, अगर रिपल्शन कम हो रहे तो बीडी बढ़ना चाहिए। क्यों? रिपल्शन कम हो रहे तो BD कम होगा ना, ज्यादा आसपास प्रॉब्लम्स नहीं है रिपल्शन ना। थोड़ी ना उसको अपने अंदर खींचता है, रिपल्शन तो बाहर भेजने की कोशिश But- करता है, हमें बट बाहर देयर ही इज स्टैटिक हिंड्रेंस आल्सो, राइट? कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर प्रेजेंट है तो वो डिस्टॉर्शन तो होगा ही ना। इट्स लाइक अगर तुमको मैं बोलूं कि तुम्हारे आजू बाजू लोग हैं तो थोड़ा तो तुमको चलने में स्पेस ज्यादा चाहिए और थोड़ा तो तुमको अपना स्पीड स्लो डाउन करना पड़ेगा ना, तो थोड़ा तो प्रॉब्लम आएगा ही, चाहे कितने भी कम लोग हो। हाँ सर। तो इंटरेक्शन इज डिफरेंट ना, एंड दीज आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, तो छोटे लेवल पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अगर छोटा सा किसी चीज को मैंने ये कर दिया तो डिस्टर्ब कर दिया तो दिस ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स, वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रॉन्स, राइट? बॉन्ड्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। तो अभी मैं वापस जब यूज करूंगा, अब मैं तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए कुछ अलग वैल्यू ऑफ एनर्जी की ये होगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। तो देन एट द एंड आई विल बी लेफ्ट विद दिस। सो नाउ आई हैव दिस। तो ये अलग अलग BD के वैल्यूज क्यों आए? बिकॉज एनवायरनमेंट वाज चेंजिंग एवरी टाइम। इसके लिए सारे BD वैल्यूज को मैं एवरेज निकाल दूंगा, दैट विल बी कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी। सो इफ यू लुक एट द डेफिनेशन, यहाँ पे एवरेज वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया है। इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज। So I have shown this in this manner. Step 1. So this is BD1, delta H1 that you see. Step 2, this is BD2. Step 3, this is BD3. जो मैं डायग्राम में करके दिखा रहा था वही मैंने इक्वेशन के फॉर्म में दिखाया है। And finally step 4. So what will be bond energy? Bond energy will be average of bond dissociation energy values. So BE will be average of BD values. So I can say that bond energy of CH bond is this 1/4 delta H1 plus delta H2 plus delta H3 plus delta H4. ये अलग अलग BD के वैल्यूज थे, इनको मैंने एवरेज किया तो वो मेरा बॉन्ड एनर्जी कहलाएगा CH बॉन्ड का। So this was the concept of bond energy. So BD and B are always positive values because you are supplying energy to break bonds. So they are always positive values. Yani delta H will be positive. That means bond energy is endothermic process. Bond dissociation energy is also endothermic, which means that all delta HB will be positive values. As bonds are being broken. Now comes the mathematical part. अब बस समझ लो, बाद में आप लिख लो when I'm sending this to you. तो हम लोग लिखेंगे, मतलब अभी नहीं लिख सकते? नहीं अभी नहीं, अभी टाइम खत्म हो गया, 10:30 हो गया अभी। So I'll just tell you the formula and I'll send you this file and then you can copy. इतना ही है अभी कि ये रिएक्शन है, डेल्टा HR निकालना है, मतलब हीट अब्सॉर्ब्ड और हीट रिलीज्ड इन रिएक्शन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो ये फार्मूला होता है, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट्स को सम करोगे। सम क्यों करोगे? बिकॉज देखो दिस इज समेशन का सिंबल, दिस मैथमेटिक्स में दिस मींस सिग्मा, दिस मींस सम। तो बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स, ये होता है डेल्टा HR. What is delta HR? We discussed delta HR in the last lecture, that is last week.
डेल्टा एच आर वो होता है कि किसी भी रिएक्शन में जो एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज होती है उसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा एच आर। कोई भी जो रिएक्शन हो रहा है अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच आर पॉजिटिव होगा, अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच आर नेगेटिव होगा। जस्ट टू टेल यू वन सम नाउ, एक सम बताता हूं मैं। ये वाला सम आप कोशिश करना, मैं जो दूसरा वाला बता, ये वाला इजी है तो आप कोशिश करना, ये घर पे ये होमवर्क है। ओके, this I am showing you now so that you know how to solve a sum based on bond energies. बोला है calculate the heat of formation of isoprene gas. अब isoprene का स्ट्रक्चर देके रखा है क्वेश्चन के अंदर, this is called isoprene. This is called isoprene. अब देखो फॉर्मेशन बोला है, मतलब लास्ट टाइम आई टॉट यू फॉर्मेशन की इक्वेशंस। फॉर्मेशन के लिए क्या बोला था, 1 मोल बनना चाहिए प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्टेंट्स के सब क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट्स। सो दिस विल बी द इक्वेशन, आई कैन से ये वाला इक्वेशन लिख सकता हूं मैं। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन सॉलिड कार्बन प्लस हाइड्रोजन गैस will give me isoprene। तो ये वाला इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा आइसोप्रीन का। बैलेंस किया रिएक्शन को, क्योंकि प्रोडक्ट का तो 1 ही मोल होना चाहिए ना, फॉर्मेशन है तो 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट हैज बीन रिटन। नाउ व्हाट इज डेल्टा एच आर? डेल्टा एच आर विल बी व्हाट, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखो बॉन्ड एनर्जी देख के रखा है, एक एक रिएक्टेंट को देखते हैं। रिएक्टेंट कौन सा है, कार्बन, कार्बन सॉलिड। अब याद रखो एक चीज, कार्बन सॉलिड अगर है तो उसका बॉन्ड एनर्जी कहलाता है, उसको कन्वर्ट करने में गैसियस फॉर्म में जो एनर्जी है, दिस विल बी कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन। ओके, सो कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस करने में जो एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन, which is given to you in the question already। देखो हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन, सब्लिमेशन मतलब वही होता है ना सॉलिड टू गैस। हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन इज 171.7, तो उसको मैं बोलूंगा 171.7। This is the value of bond energy of carbon. So what have we learned? We have learned that if it is a single solid element को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहती लगती है, जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ दैट सॉलिड एलिमेंट। So this is the bond energy of the solid element. Also I can say it is the heat of atomization. Today only we learnt about atomization. Atomization कहलाएगा ये, because solid से gaseous atoms मिल रहे हैं, तो इसको आप heat of atomization भी बोल सकते हैं। या तो आप बोलो heat of atomization, या फिर आप बोलो bond energy, both will mean the same। या फिर आप बोलो heat of sublimation, all will mean the same for this solid element। So bond energy of carbon कितना है, 171.7। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? हर एक वैल्यू को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। इसके लिए देखो यहाँ पे 5 into 171.7 दिख रहा है आपको, प्लस the other reactant। What is the other reactant? This is the other reactant, hydrogen gas। इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, H को तोड़ने में जो चाहिए, which is given to in the question, 104 kilocalories। So straight forward application of formula है, सब वैल्यूज देके रखे हैं क्वेश्चन में। So 104 will be multiplied by which number, 4, because coefficient of H2 is 4। तो 4 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, 4 into 104 माइनस क्या होगा, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स।
क्या क्या प्रोडक्ट्स है, ये पूरा मेरा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या टाइप के बॉन्ड्स है चेक करो। कैन आई से देयर इज CH बॉन्ड, दैट इज दिस, राइट? हाउ मेनी CH bonds are there? One is this, 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 one is this. So how many CH bonds are there if I say 8? इसके लिए 8 से मल्टीप्लाई किया गया है CH को। 8 into 98.8 क्या है? 98.8 CH का बॉन्ड एनर्जी। CH का बॉन्ड एनर्जी इज गिवन एज 98.8। देखो यहाँ पे देख रखा है क्वेश्चन में। So 98.8 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज़ देयर आर 8 CH bonds in the product. Now you tell me how many CC bonds are there? C double bond C. This one, this one. So 2 CC bonds are there. 2 C double bond C. तो ये भी 147 देके रखा है क्वेश्चन में। सर So एक 147 बॉन्ड तोड़ने के बाद तो चेंज हो गए ना वैल्यूज? क्या क्या क्या? एक बॉन्ड तोड़ने के बाद वैल्यूज तो चेंज होंगे ना? हाँ, but these all are average values ना, तो we will take these only, और कोई ऑप्शन नहीं। बॉन्ड एनर्जी मतलब एवरेज ही है ना। हाँ सर। तो एवरेज का मतलब क्लोज टू समथिंग वैसा। तो 2 into this हो जाएगा, so I have multiplied 2 into 147. Finally, what is the last type of bond pending? This C single bond C, ये भी तो है, और this C single bond C, तो ये भी 2 से C single bond C मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 83.1 into 2 हो जाएगा, तो 83.1 into, तो ये क्या है? ये पूरा पोर्शन है आपका रिएक्टेंट्स, और ये जो आपका पूरा पोर्शन है ये क्या है आपका? दिस फुल थिंग इज प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स होता है क्योंकि फार्मूला में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, दैट इज फॉर्मेशन ना। वो लास्ट टाइम मैंने दिया था वो फॉर्मेशन का था, ये तो बॉन्ड एनर्जी है ना। फॉर्मेशन का उल्टा होता है ना बॉन्ड डिसोसिएशन का प्रोसेस, इसके लिए हम लोग रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। So it's reactants minus products because we are taking bond energies. If you take enthalpy of formation, then it will be products minus reactants, which we did last time. तो याद रखो बॉन्ड एनर्जी ले रहे हो तो पहले रिएक्टेंट्स लेने पड़ते हैं, इसके लिए पहले रिएक्टेंट्स है। On solving this, value आ गया कुछ 23.9 किलो कैलोरी। So that is the delta HR for this reaction. Okay, I'll send you this file. So it is reactants minus products. Why? Because बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, बॉन्ड बना नहीं रहे हैं हम लोग, पहले बॉन्ड को तोड़ने की बात की जा रही है। बॉन्ड तोड़ने की बात की जा रही है तो रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स लोगे। फॉर्मेशन होता है तो आप प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स लोगे। अगर डेल्टा HF दिए रहते क्वेश्चन में तो डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट्स, फिर ये होता। बट अभी हम लोगों ने क्या लिया है? बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स minus bond energies of products. So keep this in mind. Any doubt? Okay. Someone wanted to know why have we converted solid to gas? Because that is the definition of bond energy. Bond energy उसी वैसे डिफाइन होती है ना। सॉलिड को अगर आप जितने भी स्ट्रक्चर से वो ग्राफाइट के अंदर जो भी बॉन्ड्स है उनको आप तोड़ोगे तो आपको फिर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ना। So whenever you come across a solid substance, the solid substance का bond energy is nothing but enthalpy of sublimation और enthalpy of atomization, यानी solid to gas convert करने के लिए जो energy चाहिए वही bond energy कहलाती है। So एक solid अगर है, solid to gas convert करना है, that is called bond energy of the solid. Okay, thank you.